Good morning, friends. Welcome to my channel. And today I didn't go to the pond park. I just went to the church and came back. And I have dressed up very traditionally. And this is I like all my looks, whether I'm very casual or whether I'm uh, traditional. And this humidity, I look like I'm like packed, like a packed processed food. I'm just having my herbal tea and I'm enjoying it. And um, I hope you like my red bindi, red this combination black and white and this ऐसे टाइप का मेरे पास sleeveless भी था, like ऐसे. And my these are the first year jhumkas which I had got in January 2024. That's the start. That was the time when I started experimenting with my this looks, matlab with my jewelry. Started buying. This was my first, and it will always be very dear to me. Actually, I wanted to buy 2 jhumkas, but I was like, nahi, pehle मैं ये try करती हूँ. You seen my another silver type of चूड़ी मजा न देगी. My God, I look newlywed. I look like those Bengali females doing Durga Mata का पूजा. These Catholics वो थोड़े confused हो जाते हैं कि एक तो मेरा नाम भी शांति है, so they keep really wondering what exactly I am. Though they know that what are my belief system, because इतना boldly, इतना traditionally, ये क्योंकि tried and tested method use करते हैं ना. I hope you understand. in their thinking, in their diet, in their मतलब वो अलग नहीं ही सोचते. Wow, lemon, ginger, mint leaves will give you that freshness in herbal tea. Lemon will add that zest, that energy, and ginger, of course, is really good for your throat. Yesterday crackers were burst and there's so much of pollution. I was having literally this nasal issues, but see, it was under control because of this my herbal tea medication. Today I just decided to have, क्या बोलते हैं उसको, कंगी को क्या बोलते हैं, sweet potato. I'll just boil that and have. थोड़ा सा उसमें नमक डाल के. या अभी मुझे ना plain मोनो मील्स ही करने हैं. and I'll start my dosa also. जब मैं डोसा when I had अनाज बोलते ना, starchy this I don't know, सबको सूट करता है कि नहीं, सबको सूट करता है. ब्लड प्रेशर कैसा होता है when you have too many negative emotions, when you're too stubborn, when you're too. एक्चुअली मुझे किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, किसी चीज़ का मेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी डिफरेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही थी, बट मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. पॉन्ड पार्क पे मैं अभी 1-2 दिन का ब्रेक रखूँगी. मे बी आई विल गो ऑन फंडे. सॉरी, आई एम ईटिंग. मैंने जल्दी उठ के मैंने कितना आई अप्लाइड हिना टू माई हेयर, ठीक है. ऊपर से मैंने रात को 10 किलो का तेल अप्लाई किया था इसके ऊपर, बिकॉज माई स्कैल्प वॉज गेटिंग वेरी वेरी ड्राई एंड आई हैड एन हेयर कट इन द इवनिंग. ओके, सो बेसिकली आई वेंट टू जस्ट ऐसे कैंडल जलाने के लिए टू चर्च. दो आई वेंट इन द मॉर्निंग. ऐसे इवनिंग में थैंक्स गिविंग दे दूँ 31st का कि पूरा महीना अच्छा निकला, हेल्थ हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, तो जस्ट एक कैंडल जलाने के लिए. I hate eating on the camera, but then at the moment I said I'm fresh in my mood, so let me just catch up. कोई खास नहीं, ग्लूकोज वो 5 रुपये वाली बिस्किट just to give me some energy, since I'm that fasting person and I don't eat very heavy breakfast. पहले मैं बहुत heavy breakfast करती थी when my mom was around.
it's a new lipstick shade by Blue Heaven. Blue Heaven is a less known brand. It's a brand, उसमें से मैंने 3 लिपस्टिक लिए, 2 shades of red. These days I'm fond of red, so I'm collecting as many red lipsticks, different shades of red lipstick, and one purplish, maroonish, not maroonish, purplish kind of this, and I love this red shade. I'm sure you all will like it. तो ये मेरा नया लिपस्टिक है. And unboxing, actually I bought this jewelry फ्रॉम दी अदर पर्सन, क्योंकि वो छुट्टी पे था एंड आई वॉज नॉट इंटेंडिंग टू बाय. लेकिन मुझे कुछ यहाँ से मैंने शायद ही कोई चीज़ ली है, इक्की दुक्की ऐसे बिंदीज वगैरह ली होंगी. वो वहीं पे ही होता है, लेकिन ये साइड में ही रहता है इसका दुकान. सी दैट इज़ अ मेन हब ना, जहाँ से मेन हब है, मतलब सारी चीज़ें, स्कूल, बाज़ार, दैट इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर. जो सोनार है ना, जिस सोनार की दुकान है वो सेंट्रली लोकेटेड है. आई होप यू अंडरस्टैंड. फिर आसपास से स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, काफ़ी सारे कपड़े, लॉन्ड्री, ये वो सारी चीज़ें हैं. दैट्स अ मेन हब. नो आई बॉट मैनी. मैं लेने गई थी वो मून वाली बिंदी, तभी ये वाली 5 रुपीज़ वाली मुझे ये लेना था फॉर लॉन्ग टाइम. मैंने किसी और एक फ़ीमेल से भी काफ़ी सारी ज्वेलरी मतलब सिलेक्ट की थी, लेकिन मेरा माइंड वाज नॉट कनेक्टिंग टू इट, सो आई डिड नॉट परचेज दिस थिंग्स. लेट मी कीप दिस असाइड. दिस इज़ ग्रीन. खोल के दिखाती हूँ. सो आई डिड 2 थिंग्स. आई हैड अ हेयर कट. मैंने उसको बोला कि हिना लगाया है, शुड आई वॉश है. ये सब नहीं मैम, आपके बाल वैसे भी अच्छे हैं, बहुत ड्राई हो गए, रफ़ हो गए, लेकिन वो अच्छा, आई इतने मतलब यू कैन हैव अ हेयर कट. पसंद आया? थैंक यू इना फॉर अप्रिशिएटिंग माई ज्वेलरी. क्योंकि वो यूनिक पीसेस इसलिए होते हैं क्योंकि आई जस्ट डोंट ब्लाइंडली गो एंड बाई थिंग्स. It's only when my soul, my spirit, my heart is connected to a certain piece of clothing, only then I buy stuff. So let me keep this aside. Wow, these are another cute झुमकास. रेड कलर के हैं. मैंने डिफरेंट डिज़ाइंस लिए हैं जो मेरे पास बिल्कुल थे नहीं, बिकॉज आई वांट टू चेंज माई लुक नाउ. मतलब आई हैव चेंज माई लुक टू, लेकिन मुझे और ज़्यादा उसको एनहेंस करना है. एंड दीज आर वेरी नॉमिनल कॉस्टिंग. तुम जाके बाहर का खाना खाओगे ना, एक बार का खाना, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है. चूड़ी मज़ा न देगी, कंगन मज़ा न देगा, तेरी बगैर जान. कैसे लगा? ईना, यू आर द बेस्ट वन टू रियली कॉम्प्लीमेंट और गिव मी द बेस्ट फीडबैक. बाकी मेरी दूसरी सब्सक्राइबर्स हैं फीमेल, पता नहीं उनको क्या हो गया है, एक्सेप्ट फॉर शाइस्ता. ओकेजनली, रेयरली शी पुट सम कमेंट एंड शी सेड कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है. येस, अनबिलीवेबल. आज मैं वही सोच रही थी. दिस इज़ माई सेकेंड वन. दिस इज़ माई थर्ड वन. We women are shying away from being very feminine. We want to be this masculine, दादागिरी type of female. देखो भाई, दादागिरी इज़ इन योर कैरेक्टर, इट इज़ नॉट इन योर क्लोथ्स. मैं कितने भी टॉमबॉय कपड़े पहनूँ, मैं कितने भी ऐसे हरकतें करूँ, एज आई सेड, आई एम अ लायनेस. आई माइट लुक वेरी छुई मुई इन माई ट्रेडिशनल क्लोथ्स, बट आई एम नॉट लाइक दैट. और मैं इतने सारे आर्टिफिशियल में गोल्ड और सिल्वर ही, गोल्ड ज़्यादा पहनती थी, तो उसके बाद मेरा जो मन टूट गया सो टूट गया. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम एक्चुअली इंडल्जिंग. ये देखो भाई, सच ए यूनिक डिज़ाइन. तुम लोग को पसंद आया? प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो. ये देखो कितना प्यारा है ये, ऑल एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट. और आज दिवाली थी ना, तो ये सेट की बेस्ट ऑफ सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं और मार्केट भी बंद है 1 हफ़्ते के लिए. तो ही सेट नए डिज़ाइन 1 हफ़्ते के बाद आएंगे. तो मैंने बोला ठीक है, अगर मुझे कुछ ऐसा अच्छा लगता है तो
तो दूसरे जो है वो सिर्फ ज्वेलरी रखता है, वो सिर्फ वो दिस वन कीप्स कॉस्मेटिक, तो मुझे ये पसंद आए। और यहाँ पर भी मुझे थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, तो ही सेड ठीक है। मैंने बोला देखिए मैं फिर माइंड चेंज कर लूँगी, और वैसे भी आप तो मुझे सी ऑल दीज पीपल नो माई फेस, नो मी, सो मैंने बोला मैं आपको थोड़े से पैसे ही बचे थे ऊपर के, तो मैंने बोला मैं वरना आप रख सारी चीज़ें निकाल दो, जो भी है जितने पैसे का है मैं रख लूँगी, या तो मैं सिर्फ लिपस्टिक। तो ये सर नहीं आप रख लो, आपका मन कर रहा है ना, वैसे दिवाली थी तो मैंने सोचा कि वरना कोई बात नहीं। लिटरली आई सेड आप, आई वुड हैव ओनली, अगर वो ना बोलता ना नहीं सारे पैसे दे दो सारे पैसे दे दो, मैं सिर्फ लिपस्टिक्स उठाती उतने पैसे। हाँ, और दूसरी ये सारा माल मसाला नहीं खरीदती, बट जस्ट लुक एट दिस, इज सो प्रिटी, सो प्रिटी, सो प्रिटी। कभी कभी मुझे लगता है ना मैं पगला चुकी हूँ, मेरे पास अभी इतनी वैरायटी है। यू नो व्हाई आई बॉट ऑल दिस, मैंने बोला मेरी कुर्ते सेम रहेंगे लेकिन मेरा लुक अलग अलग रहेगा, बिकॉज एट द वे आई एक्सेसराइज माई सेल्फ। जैसे मैं एक्सेसराइज करूँगी उसका वो लुक, ये देखो कुल मिला के साथ है। अनबॉक्सिंग गाइस का पता नहीं हो तो हर चीज़ में नाइस ही बोल देंगे। आमना मोहम्मद सही में ना, झुमका गिरा रे। आई एम अ झुमका फ़ैन, और मुझे झुमके हर इसमें मुझे पसंद आते हैं, हर डिज़ाइन में पसंद आते हैं। तो मेरे पास यू विल नॉट, आई एम सरप्राइज कि मेरे पास झुमके की कितनी अच्छी वैरायटी है। आहा हा 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 हा। मैं थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि सॉरी मेरा बिस्किट खाना बहुत एलएस लगेगा, बट अगर मैंने बोला थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, बिकॉज व्हेन डिड आई हैव, आई हैड दही चावल इन द आफ्टरनून, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। अगर मैं कुछ बोलूँ कि किस तरह से मैंने वो चावल बनाए, वो चावल मैंने तवे पे बनाए थे ऑन अ स्लो फ्लेम, तो उसका जो टेस्ट है, ऐसे उसको इतने सारे गर्म पानी में उसको उखड़ा के नहीं बनाया मैंने, स्लो फ्लेम पे 10 मिनट में बनाया था, बिकॉज आई हैड सोक्ड इट ओवरनाइट। मेरा बासमती चावल टडंग 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 टडंग, चूड़ी मजा न देगी कंगन। आई थिंक दिस चेक दिस आउट। मैं अपना ऑनलाइन शॉप खोल देती हूँ, एंड यू नो जो भी तुम्हारी ज्वेलरी है ना, यू कैन कितने सारे तुम इसके साथ क्या कर सकते हो ना, रीडिज़ाइन कर सकते हो। यू कैन रीडिज़ाइन योर ज्वेलरी। यही नहीं कि तुम्हें यही पहनना है, ऐसा ही पहनना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, in fact now this month I'm going to buy some few more little more pieces just to add to my collection. चूड़ी मजा न देगी, इसका ये जो है ना, इसका मांग टीका भी मस्त लगेगा। सो देखो मैंने कंगन भी लाए थे 100 रुपीज़ के 4, नॉमिनल कॉस्ट। ऐसे लोग ऐसे पगला जाते हैं। मैंने बोला दिस इज़ नॉट कॉस्टिंग मी। आई सेड ना मैं एक बार या 2 बार हम लोग खाने को जाएंगे, बाहर खाने को जाएंगे, उसके पैसे का है। अगर तुम जंक फूड खाते हो ख़रीद के एवरी सिंगल डे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ये सब करते हो, उन सारे पैसे अगर तुम जमा करते हो तो ये सारी चीज़ें आएंगी। एंड दे डोंट कॉस्ट मच। आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ रेंटल्स अराउंड ना, वो जो फीमेल्स होती है ना बहुत स्मोक करती है, सो दे स्टैंड एट द विंडो एंड दे स्टार्ट स्मोकिंग। व्हेनेवर आई हैव माय हर्बल टी ना, मुझे बहुत बस्पिरेशन होती है, पता नहीं। तेरे बगैर जानम, तेरे जानम, सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी।
सबसे बॉटम का है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये. आई लाइक माई स्टील टम्बलर. मज़ा आ गया. अब नाउ आई एम फीलिंग लिटिल बिट फ्रेश. एंड पीरियोडिक्स मुझे मैंने पॉन्ड पाक को आज मिस नहीं किया क्योंकि कल भी मैं थक गई थी. एंड एज आई सेड कि मैंने हिना भी लगाया था दोपहर में. एंड वो बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है. फिर उसके बाद इन द नाइट आई हैड दिस हेड ऑयल मसाज. तो मेरे यू सी द डिफरेंस व्हेन आई हैव द ऑयल मसाज. तो बाल बहुत ही सिल्की सॉफ्ट और अच्छे बन गए हैं. वो ऐसे ही अच्छे बन गए थे. ही गेव मी अ हेयर कट क्योंकि हिबिस्किस एंड आंवला पाउडर गिव्स अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग प्लस कॉफ़ी. सो द हेयर इज़ कंडीशनड लाइक एनीथिंग. सो वो सॉफ्ट थे दो इट वॉज थोड़ा सा ड्राइश और रफ हो गए थे बिकॉज मैंने शैम्पू नहीं किया था. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैंने जस्ट वॉश किया था. when you're putting henna you should never use a shampoo. You should use it the second day or third day. Ideally if you keep it like this and wash it after 3 days also you will get a good result. but मुझे तेल लगाना था. सी मैंने हेयर कट किया था. just snip 2.5 inches from my hair. so now this is my November look. चूड़ी मजा. can you see the difference in my eyebrows? suddenly अच्छे लगने लगे. कंगन मजा न देगा. एवरी टाइम वी शुड बी लुकिंग डिफरेंट कि इंसान सोचता ही रह जाए कि ये उस दिन ऐसी दिख रही थी, आज ऐसी दिख रही है, आज वैसी दिख रही है. आई होप यू लाइक माई ईयरिंग्स. दैट पर्ल ईयरिंग्स मैंने अनबॉक्सिंग में दिखाया था. सी व्हेन आई एम बाइंग ईयरिंग्स ना तो मैं क्या करती हूँ, मैं काफ़ी सारे खरीदती हूँ. मतलब तीन चार ऑल द टाइम. 3-4 2-3 तो मैं लेती ही हूँ. मतलब कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं ना कि तुम्हें वो मिलने वाले नहीं है. मतलब वो आए हैं और निकल गए वैसे. तो ये सिर्फ 1 या 2 पीसेस लाते हैं, 1-2-3 पीसेस लाते हैं, वो फट से निकल जाते हैं. तो ऐसी भी नहीं है कि मुझे आई एम कनेक्टेड टू दीज पीसेस. जैसे मैं यहाँ पे बिंदी खरीदने 5 रुपये की बिंदी की तरह और मैंने कितना सारा शॉप किया. सो कैन यू इमेजिन. क्योंकि मुझे अच्छे लगे ये डिज़ाइंस और मैंने सोचा कि वाई डोंट आई टीम देम अप विद डिफरेंट ऑफ माई आउटफिट्स. मतलब मेरा आउटफिट कुर्ता वही रहेगा बट एवरी टाइम आई एम वेयरिंग इट आई टीम इट अप विद डिफरेंट एक्सेसरीज. तो और भी अच्छा दिखेगा. हैव यू सीन माई झुमका? देखिए कि तो इतने प्यारे हैं. ब्रास के हैं, कॉपर के हैं. दुर्गा माता की वो लग रही हूँ मैं, भक्त. मेरे बगैर साजन. आई नो स्टार्टिंग में देखने में थोड़ा सा ऑड लगेगा कि मेरे लंबे बाल थे और अच्छे झलक रहे थे एंड सडनली नाउ इट्स शॉर्ट है. I had decided I always have haircut sometimes in 2 months sometimes in 3 months. इस बार मैंने थोड़ा लंबा गैप रखा था तो उन्होंने that guy told me आप थोड़ा ज़्यादा गैप हुआ ना because they're so used to seeing me frequently for the haircut. तो मैंने बोला untidy जैसे लग रहे हैं. So why do you see my hair healthy is because I have haircuts like every 2 months 3 months. 3 months में मैं 1.5 inch अपने बाल. तो इसलिए वो हेल्दी ये जो बाल होते हैं वो हेल्दी दिखते हैं बिकॉज ऑफ दैट. सो नाउ व्हाट इज़ माई हेयर इज़ क्वाइट द हेल्दी लॉट. जो मैंने हिना लगा के उसको बराबर किया था बिकॉज वो थोड़े बाल थे ना जो आई यूज्ड टू यूज दोस अदर कलर्स. I think people are so obsessed with celebrity relationships. They find them so fascinating. Yeah, they are fascinating because अगर दोनों ही सेलिब्रिटी है तो उसकी बात ही कुछ और होती है, राइट? इनके बीच में बहुत सारी एक कपल्स जो हमें दिखते हैं, दे आर सपोज टू बी दैट वे because they're supposed to be together for a whatever period of time. and ये एक
ये ऑर्गेनिक चीज़ नहीं होती है इनके बीच में। इनके बीच में कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है कि तुम देखते हो लव एंड रोमांस हो गया, फिर शादी किसी और से हो गई, फिर इन्होंने अफेयर कहीं और कर ली। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट स्पीक इन टू मेनी लैंग्वेज बट आई टेल यू ऑल दैट मच, कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है। इनकी एक इमेज होती है जो इनको उस तरह से उनको उस तरह के पार्टनर्स के साथ रहना पड़ता है या कोलैबोरेट करना पड़ता है राधा है से। मेरी दुनिया में शामिल हूँ। My face is glowing, right? We women waste our money on branded things. मैंने बोला I buy, see earlier I was this brand thing. Now I explore lesson on brands which are equally good. मुझे अगर एक हाई फाई ब्रांड में एक आध चीज़ मैंने ब्रांडेड ली होगी, शुगर पॉप, कलर एसेंस, वो भी इक्वली अच्छे थे और ये भी इक्वली अच्छे हैं। मेरे इनसाइट के है वो आधे पूरे लिपस्टिक्स इनसाइट। आई डोंट नो इफ यू नो दैट ब्रांड। अभी ब्लू हेवन, जस्ट येस्टरडे आई गॉट 3 लिपस्टिक्स। आई सेड मुझे अभी रेड्स को बहुत ये करना है, मेरे वार्डरोब में ऐड करना है, तो आई हैव मेनी शेड्स ऑफ रेड नाउ। और रेड ऐड करने से ना वो कोई भी डल आउटफिट भी बहुत अच्छा दिखता है। एंड आई कैन कैरी रेड राइट नाउ। पहले मैं नहीं यूज़ करती थी, फिर भी कितना तेल है बाप रे। यू नो आई डिड नॉट वॉश इन अ शैम्पू, आई यूज्ड इन अ शिकाकाई सोप 3 बार इन द मॉर्निंग, तब जाके थोड़ा बहुत तेल निकल गया, वरना अभी भी फिर भी है। सोप से मैंने निकाला, शिकाकाई सोप। शेड्स ऑफ ब्राउन अच्छे लग रहा है ना। इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक मेहंदी कलर, इट इज़ लुकिंग लाइक इसको मैंने 1.5 डे सोप करके रखा था। इफ़ यू कैन सी इट, इट इज़ नॉट रियली, इट इज़ नॉट दैट ऑरेंज। इसका जो कॉन्कॉक्शन था, तो इफ़ यू कैन सी इट, इट्स गिविंग अ लाइटर ब्राउनिश शेड, लाइक ब्राउनिश वाला शेड दे रहा है, नॉट दैट ऑरेंज। क्योंकि क्या होता है ना, मेरा माई हेयर हैज़ एक्सेप्टेड दैट कलर। वो तुम पहले इतने सारे आर्टिफिशियल कलर लगाते हो, तुम्हारे स्कैल्प को उसकी आदत होती है। एंड फ्रॉम पास्ट 2 months आई एम यूजिंग ऑल दीज हर्बल कलर, तो उनको तुम्हारे हेयर को कैच करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैजिक नहीं है ये। तो नाउ इट्स ब्लेंडिंग विद माई हेयर एंड इवेंचुअली आई विल हैव अ डीप डार्क कॉफ़ी कलर ऑन माई हेयर इवेंचुअली। अभी नहीं, इट विल टेक सम टाइम्स, मे बी आफ्टर 6 months वो जो भी बाल ये रहेंगे वो उसको ब्लेंड होके वो डार्क कॉफ़ी कलर बाल हो जाएंगे। सो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस कि आई ऑलवेज टेल पीपल की रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं मिलेंगे कि जेट ब्लैक ही चाहिए, जेट डार्क। एंड स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद हिना एंड अदर हर्बल पाउडर्स, दे ऑल हैव टू ब्लेंड वेल, दे हैव टू सूट योर स्कैल्प, दे हैव टू सूट योर हेयर, जैसे वो मेरे हेयर को सूट करते हैं, right? You cannot be using artificial colors also and then using henna also and then and तुम्हारी डाइट भी कचरा जैसी है। सो एवरीथिंग इज़ ब्लेंडिंग। मेरा खाना भी वैसे है और मेरे आई होप यू अंडरस्टैंड, तो इसलिए दैट इज़ ब्लेंडिंग वेल। इवेंचुअली इट विल गिव अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राउनिश कलर, बट आई विल बी यूजिंग ब्लैक ऑल्सो, जेट ब्लैक समटाइम्स, जब ये बहुत ज़्यादा ये दिखेगा तब। Maybe next week or so I'll be using black. So keep black मेहंदी. So experiment with your looks. उसके लिए मेहनत लगती है. Don't outsource it. There's no quick fix. आज का ज़माना है क्विक फिक्स, हर चीज़ क्विकली चाहिए। यू नो, हम हिना एप्लीकेशन इज़ वेरी मैसी। वो तुम्हारे सर पे 3 घंटा रहता है, पूरा हाथ भी ऐसे हो जाते हैं। आई अप्लाई, आई डोंट यूज़ ग्लव्स, आई यूज़ माई हैंड्स, आई लाइक दैट। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना हिना की, आई कांट टेल यू, इट वाज सो सूदिंग, सो ब्यूटिफुल। दैट्स द रीज़न वाई आई एम काम डाउन। नहीं तो आज 1 तारीख है ना, मैं बर्स्ट आउट करती, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड, आई डोंट गेट इनटू दैट स्टोरी। हमारे बीच में काफ़ी सारा बातें लास्ट ईयर हो रही थी, आई कांट इवन टेल यू। बात यहाँ तक पहुँच गई थी
वो भी पब्लिकली। हाँ, तो बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 1 year आई सी द सेम फेस, मुझे कैसा लगेगा? दो आई ट्राइड नॉट टू लुक, आई लुक हियर एंड देयर। तो इट वॉज़ वेरी वोलेटाइल एंड स्पेशली आज 1 तारीख, तो एग्जैक्टली बहुत ही वोलेटाइल था, बहुत ही ड्रामेटिक था। सोचना भी नहीं चाहती हूँ मैं। We invest in ourselves. When we invest in ourselves, we look so much more better, right? ब्लेंड होने में टाइम लगता है, तो 6 months तो लगते ही है for your hair to adjust. And if you're having an application, last month I had only 2 applications and 1 application of black mehndi, so all in all 3. So every month if I'll have 3 to 4 applications, then my hair will adjust to it, otherwise not. My scalp and my hair will adjust to it. Hair care is very delicate subject. No amount of shampoo, conditioner can give you. It can give you a temporary shine, it can wash off your dirt. Don't expect miracles out of shampoo and conditioner. Just use them as cleaning agents and use them as detergents, or use them as जैसे तुम्हारे बाल फजी है, then it will settle your hair with conditioner. ज़बरदस्ती सॉफ्ट बना देंगे क्योंकि उसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं, इसलिए। आई होप यू आर लाइक माई ज्वेलरी एंड बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि I had made this video about रहस्य, अद्भुत रहस्य of water bodies. What I mean to say is that it reflects, because we also are made up of water, so we are attracting likewise energies when we are next to water bodies. ये लाइव एग्जाम्पल है, तुम लोग ने खुद ने देखा। जब मैं पॉन्ड पार्क में चिड़चिड़ी होती हूँ तो उस दिन मुझे ज़्यादा सताते हैं, जिस दिन मैं बॉदर नहीं करती हूँ उस दिन भी सताते हैं। ये नहीं है कि दे डोंट डू इट हाउ टू गैदर माई अटेंशन और समथिंग, बट आई एम नॉट बॉदर्ड। सो अगर तुम्हारे सितारे बुलंद है ना, तो तुम्हें कोई चीज़ टोने टोटके की ज़रूरत नहीं होती है। दिस जय मदान, दिस लेडी एस्ट्रोलॉजर, शी गिव सो मच ऑफ उपाय टोना टोटका। अभी कुबेर का भी रख लो, इसका भी मूर्ति रख लो, उसका भी रख लो, ये भी करो, हल्दी डालो, ये करो। खुद एक मैसिव बंगलो में विद अ गार्डन एंड स्विमिंग पूल के साथ रहती है इन दिल्ली। तो ऐसे लोगों को बोलने में क्या जाता है? तुम्हारे सितारे बुलंद है ना, तो तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम कितना भी क्राइम करो वो ढक जाता है, पीपल विल सपोर्ट यू। बट अगर तुम्हारे स्टार्स आर वीक और तुम्हारी किस्मत ख़राब है, तो यू विल हैव द टफ टाइम ऑफ योर लाइफ। तो यू रिमेन स्टेडी। जैसे मैं बोलती हूँ ना, लास्ट ईयर जबकि मेरा लुक बहुत ही ट्रेडिशनल था, मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इनकी गुड बुक्स में नहीं थी। आई वॉज आइसोलेटेड, मैंने केयर नहीं किया। बट अभी उन लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी मतलब फीडबैक देती हूँ। आई रिस्पेक्ट वेन एवर दे से कैन यू कम ओवर, और गैदरिंग है तो मैं उस चीज़ को रिस्पेक्ट करने लगी हूँ। तो दे आर लाइक, हाँ यार, ये कैरेक्टर जो इतने सारे साल आइसोलेटेड था अभी आ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इसलिए मुझे इतना सारा भाव मिल रहा है। बिकॉज आई वॉज अ वेरी प्राइवेट, वेरी आइसोलेटेड पर्सन। मैं नहीं मिंगल करती थी, मैं हाय हेलो तक नहीं बोलती थी लोगों को। सितारे जब बुलंद होते हैं ना, यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। तो ये मत सोचो कि मैं ये उपाय करूँगी। तो मैंने बोला मैंने कितने सारे स्टोन्स पहने हैं। मैं रुद्राक्ष पहनती थी, तावीज़ भी पहनती थी, और क्या पहनती थी मैं, इतने सारे क्रिस्टल्स भी पहनती थी मैं।
आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. सो अगर मैं तुम लोग को ये चीज़ बोल रही हूँ और अगर तुम किसी से स्पेल्स करते हो, हेक्सेस करते हो, वो तुम्हारे दैट विल कम बैक टू यू. ओके. अनदर थिंग आई एम टेलिंग यू इज़ दैट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन गॉड. बस उतना ही कर लो, उतना ही काफ़ी है. अपने डाइट को सुधारो, मूवमेंट करो और पॉजिटिव रहो. खाना मोनो मील्स रखेंगे तो और भी अच्छा है. अगर तुम्हारी जीभ और तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम नहीं कर पा रहे हो तो धीरे धीरे चीज़ें कट डाउन करो. मैंने ये ओवरनाइट नहीं होता है. मैं बोलती हूँ भाई आई स्टिल ईट जंक फूड बट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ एंड ओनली व्हेन इट्स देर इज़ अ गैदरिंग और एन ऑफरिंग और समथिंग ऑफ दैट. अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ. मैं अपने लिए अगर मैं कुछ खाती हूँ जंक तो मैं पैकेट ऑफ चिप्स वंस इन अ वाइल खाती हूँ. सो मैंने जब से मोनो मील्स करने शुरू कर दिए या फास्टिंग शुरू किया है, रिगरस फास्टिंग, तो मैंने इसके रिज़ल्ट्स बहुत सारा देखा है. मेरी जब भी एक्स एंड पेन्स होते हैं और मैं फास्टिंग करती हूँ, मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं. एंड आई सेड एक अच्छी नींद में ही तुम्हारी हीलिंग होती है. बाकी ये मेडिसिन आर लाइक दिस प्लेसिबो इफेक्ट. तुम्हारी 100% हीलिंग नींद में होती है. जब तुम सोते हो तो तुम्हारी बॉडी एक्चुअली ब्लेसिंग्स भी होने चाहिए गॉड के. तुम लोग को तो क्विक फिक्स चाहिए. ये सप्लीमेंट खा लिया तो लंबे बाल, ये कर लिया तो वो हो गया, जिम जाएंगे तो अच्छी बॉडी होगी. ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है. डू यू सी मी खपना? मैं थोड़ी खपती मरती रहती हूँ. मैं नहीं करती हूँ ये सारी चोचलेपना. एंड पीपल वंडर हाउ कम आई एम सो स्लिम एंड ट्रिम. मतलब खाने पीने पे अगर कंट्रोल नहीं है तो यू विल नेवर बिकम स्लिम एंड ट्रिम. वो तुम्हें फॉल्स चीज़ें मर मराओ कि जिम करने की भी ज़रूरत नहीं है. जिम जाओ अगर इफ़ यू वांट टू हैव सम यू आर वांटिंग अटेंशन और यू वांट अ रूटीन or you have friends over there like-minded people fitness के and you want to have some good time. I don't think it's not a bad thing. It's something to look forward for. फिर वो एक नेटवर्क हो जाता है, फ्रेंड्स, एक like-minded लोगों का, एक acquaintance का. Migraine is nothing but repressed and deep-seated emotions. I'm talking out of experience. After my accident, I died. I said मुझसे नहीं होता ये headaches. Because वो क्या होता है ना, I was also weak and I was going through so much of medication, surgery, medication, फिर आसपास का वो लोग, फिर my hand was looking very ugly also, like you know, ऐसे skeleton की तरह. वो सब देख देख के मैं मर जाती थी. इतने बड़े बड़े screws, holes. See, look at it. अभी देखो कैसे लग रहा है. All this was smashed and see this. It's भगवान की शक्ति है. मुझे कोई बोलता है शांति, मैंने बोला it's God's blessing and miracle कि वन पीस में हूँ मैं. वरना सोचो मैं फास्टिंग कर रही हूँ. लास्ट डे ऑफ कम्युनिटी प्रेजा देयर. मुझे जाने का, मेरे पैर ऐसे बंधे हुए हैं. मैंने बोला शांति मैं नहीं कर पाऊँगी, आज मैं नहीं जा रही हूँ. बट 5:10, 5:11 आई एम एट देयर हाउस. कैन यू बिलीव? मैं जो तेज़ी पवन पुत्र हनुमान की तरह ना, वैसे मैं पहुंच गई वहाँ पर. मैं बोलती, मुझे लोग बोलते तो इतना फास्ट चलती. मैंने बोला मैं हवा की परी हूँ. सीरियसली इतने फास्ट चल के पहुँच गई हूँ. मैंने बोला भक्ति में शक्ति. और वो भी मैंने लिफ्ट नहीं लिया. द रीज़न आई डोंट टेक दैट लिफ्ट इज़ बिकॉज आई पर्सनली फील व्हेन यू हैव टू मीट गॉड यू हैव टू पुट दैट एफर्ट. किसी भक्ति करते हो तो इसको भक्ति बोलते हो. तुम अकॉर्डिंग टू मी दैट्स भक्ति. वरना प्रेयर्स का क्या है, वही बोरिंग चैंटिंग, वही रिपीटेशन ऑफ प्रेयर्स. मैंने बोला आई डोंट इवन, मेरा माइंड भी उसमें नहीं रहता है. आई जस्ट गो देयर एंड से थैंक यू. आपने मुझे यहाँ तक लाया, थैंक यू. बस उतना ही. दैट्स ऑल. आई एम वाइंडिंग अप एंड प्लीज़ यार मुझे फीडबैक दे दो. ऑल द लेडीज़ whoever is watching, where is my female base, subscriber viewer base? प्लीज़ यार कुछ तो कहो. ये लड़के तो बोलते ही रहेंगे. these men, they will find a tree wrapped in a sari also beautiful. Seriously.
सीरियसली आज पूरा हफ्ता एक अलग अलग था. एवरीथिंग वॉज डिफरेंट, एवरी लुक वॉज डिफरेंट, एवरी मूड वॉज डिफरेंट. आई हैव अ नाइस डे एंड आज के लिए शायद मैं इतना ही करूँगी. इट डिपेंड्स थ्रू आउट द डे इफ़ आई फील ग्रेट और समथिंग. एंड प्लीज़ लेट मी नो. इन आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक एंड योर एनालिसिस ऑफ माई कॉन्टेंट. मुझे अच्छा लगता है when you infer it so beautifully. In fact, Ina was the one who put words to what I wanted to express regarding water bodies. She was the one, and she correctly said that कि yes, because we are also made up of water, right? So हमारे अंदर जो emotion रहते हैं, we attracting the same kind of emotion. Positive है तो positive, negative है तो negative. मैं बोलना नहीं चाहती हूँ. ये पूरे सूएज का वाटर फिल्टर करके उसमें पूरे वो समंदर में डाल देते हैं. एटलीस्ट वहाँ तो फिल्टर तो करते हैं, यहाँ तो ऐसे ही शायद से. या एंड देयर इज एन अंडरग्राउंड टनल विच कनेक्ट्स दैट सबर्ब. तो पीपल कैन गो वॉकिंग, लेकिन यू नो हाउ इट इज़ ना, चलने का वो सिस्टम है ही नहीं. बस वॉक्स मारेंगे. व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर द सिटी समटाइम्स. बॉम्बे यूज्ड टू बी very, I won't say, yeah, beautiful. It's still beautiful in its own way, in its crowded, dirty, polluted way, but now things are more organized. जैसे पहले वो 80s 90s में ऐसे ऑर्गेनाइज है, बट इट वॉज वेरी नाइस. स्पेशली बैंड स्टैंड इन द 90s यूज्ड टू बी वाओ. वर्ली सीफेस एंड ऑल दोज प्लेसेस अमेजिंग लगते थे. टाउन जाने का मन करता था टू कुलाबा. वो सारी बैरिकेड्स वगैरह नहीं रहते थे. टाउन मतलब वॉज फन. नाउ मैं टाउन सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है वो दूसरा स्टेट है या दूसरा कुछ पार करके कहीं जाना है. मन भी नहीं करता है. बहुत सारा गुजराती फूड थाली खाने का मन करता था उस टाइम पे. फिर वो कोलाबा में ऑल दोज बीच से उसका नाम है बदियानी बिरयानी. ओ माय गॉड, वहाँ का वो ताज छोटे मियाँ का वो सब देखना चाहिए. वो सब स्ट्रीट फूड खाना चाहिए. क्या मज़ा आता था एक ज़माने में. इंडिया ताज. कुलाबा हैज़ अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर. चर्चगेट हैज़ इट्स ओन फील. Fascination, yeah. South Bombay is South Bombay. Pede Road and all those places. Kames Corner, Warden Road. उसका वो फील ही अलग है. I cannot even describe. Since we are from Bombay and हम मेरा तो काफ़ी अप डाउन मज़ा, मतलब I cannot replicate it. अभी मुझे बोलो ना टाउन, I would not be that keen also at the same time. It's an aura. वहाँ की aura ही अलग है. जो सबर्ब्स में रहते हैं ना उन लोग LS जैसे होते हैं, क्योंकि ये सब फॉरेन रिटर्न होते हैं. ये फॉरेन क्या मतलब, आई कैन टेल यू, एलीट्स इन साउथ बॉम्बे आर कम्प्लीटली डिफरेंट. पीपल इन बैंड्रा जो आर कम्प्लीटली डिफरेंट. यू कैन नॉट, वो क्लास ही अलग है. सीरियसली वो क्लास ही अलग है. आई हैड गॉन टू विलिंगटन जिमखाना. इट इज़ सो ब्यूटिफुल रियली. ऑल दीज एलीट्स प्लेइंग. गार्डन रहता है. देन दे हैव देयर that tea over there. So you feel like a posh, Wellington Gymkhana. Just sharing some of my experiences. ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था. अभी ये देखो कैसे बन गया. वन ऑफ द प्राइम लोकेशन बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट. Okay guys, love you all, everybody. मिठा सेन, कुछ तो लेक यार, अच्छा कुछ तो. I hope you're moving around, moving your ass. Okay, bye.